So, welcome back students. Today we are going to discuss hypothesis testing. In previous lectures we have discussed about sample size, we have discussed about sampling techniques, we have discussed about that how to determine the sample size for our research and what can be our minimum sample size for our research. In today's lecture we are going to discuss hypothesis testing. This is Dr. Ram Singh and I am taking your lecture on research series. And today we are going to discuss hypothesis testing. Let's move. So when we talk about hypothesis, what are hypotheses? Basically, hypothesis is an assumption that may prove either correct or incorrect. तो hypothesis क्या है? ये कोई assumption है जो हम जिनको लेके चलते हैं आइदर या तो वो करेक्ट होंगी या इनकरेक्ट होंगी। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कोई भी रिसर्च करने की जो हमने एजम्पशन लिए हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि हर एक रिसर्च किसी न किसी एजम्पशन पे बेस होती है। तो यही वो एजम्पशन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इन नल हाइपोथेसिस वी एक्सपेक्ट दैट देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट. So if the null hypothesis is not rejected, it means there is no change, right? No change will be made. Means there is no change or no difference is observed in the phenomena under study, right? And null hypothesis is represented by H naught. Alternative hypothesis vice versa. It is a statement that some effect is expected. So, accepting the alternative hypothesis means that there is a change in the opinion or the action, and it is represented by H1. So, these are the two types of hypothesis. Now, coming on next one, very important concept that many times what happens, incorrect conclusion about the hypothesis may be drawn. कई बार जो हाइपोथेसिस होती हैं वो इनकरेक्ट, जो कंक्लूजन होते हैं हाइपोथेसिस के बारे में वो इनकरेक्ट हो जाते हैं हमारे, और उनके पीछे कुछ रीजंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। चलिए, पहला है फॉल्ट इन द स्टडी डिज़ाइन। तो जो हमने स्टडी डिज़ाइन लिया है, जो हमने सैम्पल डिज़ाइन लिया है, सैम्पल जो लिया है हो सकता वो उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिवनेस ना हो, उसकी वो उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ना हो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का। तो उस केस में भी जो हमारे जो रियलिटी होगी वो कुछ और होगी और हम जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो कुछ और होंगे। So there will be the error in drawing the conclusion. Then second is selecting the sampling technique. There might be the chances that we are having certain fault in selecting the sampling techniques. Whatever the sampling technique that we have discussed in previous lecture. So whatever the sampling techniques we are using, it should be as per the requirement of the particular research, right? तो ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि आपकी जो सैम्पल टेक्निक है उसमें अगर फॉल्ट होगा तो भी आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रियलिटी कुछ और होगी और आपके रिजल्ट्स कुछ और रिपोर्ट करेंगे। देन अनदर रीजन इज इनएक्यूरेट डेटा कलेक्शन मेथड. Might be possible that we are not recording the data as per the requirement of the field, our field of study. So in that case what happens, of course the results will be something different, right? Then inappropriate statistical techniques. Again it is very important. If we conduct wrong test, if we conduct incorrect statistical analysis, then of course it will give the wrong result. It will give wrong result, of course, yes. So statistical technique भी हमें ध्यान देना है कि ढंग का सैम्पल साइज़ है और सैम्पलिंग टेक्निक्स कैसी हैं, और उसी के हिसाब से हम अपना स्टैटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं. वी विल लेटर ऑन डिस्कस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, दोनों केस में हमारे टेस्ट अलग हो जाती हैं, राइट. सो इट विल बी द अनदर रीज़न फॉर इनकरेक्ट कंक्लूजन अबाउट द हाइपोथेसिस. Then incorrect conclusion drawn, and finally of course yes, many time it happens that as a researcher we conclude in a wrong way. Incorrect conclusion we have drawn because of the lack of knowledge. Inappropriate conclusion may be drawn. So these are some of the reasons behind the incorrect conclusion about the hypothesis, and all these reasons leads to the two types of major errors that we are going to discuss, that is your type 1 error and type 2 error.
सो टाइप 1 एरर क्या है? व्हेन वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, इट इज नोन एज टाइप 1 एरर. व्हेन वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, इट इज़ नोन एज टाइप 1 एरर. तो हाइपोथेसिस की बात करें, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस. सो व्हेन वी reject null hypothesis when it is true, it is known as type 1 error, and when we accept null hypothesis when it is false, it is known as type 2 error. तो ये दोनों एरर हो सकती हैं. जो हम कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ दीज 2 एरर्स. तो टाइप 1 एरर को हम शो करते हैं अल्फा से, और यही आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है. और टाइप 2 एरर को हम शो करते हैं बीटा से. तो टाइप 1 एरर मीन्स व्हेन वी रिजेक्ट एच नॉट व्हाइल इट इज़ ट्रू, राइट. मान लीजिए कोई सर्वे किया गया, और मान लीजिए सर्वे करते हैं कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या है, वेदर कस्टमर प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट मोड और नॉट, राइट. हो सकता है रियलिटी में कस्टमर्स ऑनलाइन पेमेंट मोड को प्रेफर करता हो, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे निकल के आ रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट मोड को प्रेफर नहीं करता है कस्टमर. तो उस केस में वी विल हैविंग टाइप 1 एरर कि वॉट एवर द रियलिटी एच नॉट इज़ ट्रू बट वी रिजेक्ट एच नॉट. हमने जो मांग चाहिए थे कि कस्टमर प्रेफर ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, और उसको बाद में रिजेक्ट करें, तो इट मीन्स रियलिटी में तो वो ट्रू थी, बट वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट. सो ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द एरर एंड नोन एज टाइप 1 एरर. Then another case is when H naught is false and we accept it, we don't reject it, then it leads to type 2 error. So most of the time our research is most concerned about this type 1 error, that is represented by alpha, and this is represented by beta. Now coming on the steps in hypothesis testing, very important. So first step is to formulate H naught and H1. So very important step कि we should make a formal statement about null hypothesis as well as alternative hypothesis, and it should be clearly stated in the light of the research problem in our hand. Then another step is choosing a level of significance. Now selecting a level of significance, very important. We have already discussed type 1 error को कैसे reduce करना. तो it can be only done by selecting the appropriate significance level, और normally hypothesis testing में we prefer 5% or 1% level, right. So what we have discussed, 95% confidence level, that means 5% level of significance. 99% confidence level, that means 1% level of significance. What we have discussed in previous lecture, you can refer that lecture. The link of the lecture is given in the comment on the description over here, so you can go over there. Now level of significance depends on difference between sample mean, size of sample, variability of measurement and direction और non direction hypothesis. तो इन पे डिपेंड करेगा कि हमारा सैम्पल मीन का जो डिफरेंस है वो कितना है विद इन द सैम्पल. देन साइज ऑफ सैम्पल हमने कितना लिया है, वेरिएशन ऑफ द मेजरमेंट, जो वेरिएबिलिटी है मेजरमेंट में वो कितनी है, और वेदर अवर हाइपोथेसिस डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, वेदर वी आर गोइंग फॉर वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट. देन next step is collecting the data. We finally collect the data, then we calculate the test statistics. Now here what happened, we determine the probability associated with the test. इसको हम कहेंगे TS calculated, जो हमारी probability निकल के आ रही जो टेस्ट करने से, and as well as we also determine typical value of test statistics. तो ये तो वो वैल्यू है जो हमारी कैलकुलेटेड आई है, राइट. और जो यहाँ पे हम ले रहे हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अवर टिपिकल, और यू कैन से इट इज़ क्रिटिकल वैल्यू एंड रिप्रेजेंटेड बाय TS क्रिटिकल, राइट. सो बेसिकली टिपिकल, या इसको आप लिख सकते हैं क्रिटिकल वैल्यू. तो TSCR निकालेंगे, TSCA निकालेंगे. देन वी कंपेयर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा एंड डिटरमाइन द TS कैलकुलेटेड फॉल इन द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और नॉट, राइट. सो हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे अपना अल्फ़ा निकालेंगे पहले.
ठीक है, प्रोबेबिलिटी कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। ऑन द लाइट ऑफ दिस अल्फ़ा we will look for in the light of this alpha we will decide about the rejection or acceptance of hypothesis by determining whether this TS calculated fall in the region of acceptance or not, and on the basis of this we finally accept or reject the null hypothesis and draw the conclusion about our research. So I have just given the overview about this, and we will discuss later on in upcoming lectures with the examples on hypothesis testing. We will done by the help of certain numerical examples. Now coming on the next concept, that what we have just discussed, one-tailed test and two-tailed test. So when the test of null hypothesis is expressed directionally, it refers to one-tailed test, and two-tailed test are test of null hypothesis where the alternative hypothesis is not expressed directionally. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन टेल और टू टेल टेस्ट की। सो जब वन टेल और टू टेल टेस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि whether a test of null hypothesis the alternative hypothesis expressed in directionally or not। तो यहाँ पे हम बात करें कि when the test of null hypothesis, ये हम बात यहाँ पे रह गया शायद, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस डायरेक्शनली और इन अ टेस्ट नल हाइपोथेसिस द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट एक्सप्रेस डायरेक्शनली। तो अगर वो डायरेक्शनली है, डायरेक्शनली मीन्स आई एम रेफरिंग ओवर हियर नॉर्मलिटी कर्व, तो वेदर इट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम ले रहे हैं, तो अगर वो एक डायरेक्शन की तरफ एक्सप्रेस इंक्लिनेशन है देन इट विल गो फॉर वन टेल टेस्ट। But if it is not expressed directionally, then it will be the two-tail test। यानी कि दोनों रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं, दोनों तरफ कंसिडर कर रहे हैं, तो it will be the two-tail test। I will discuss with example in upcoming series in detail। Now what is test statistics? जो अभी हमने बात की थी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, मैंने भी वहाँ पे बात करी कि कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। A measure of how close the sample has come to the null hypothesis। तो ये बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या टेस्ट करते हैं, टेस्ट क्या है, इट इज़ बेसिकली द मेजर दैट हाउ क्लोज द सैम्पल दैट वी हैव चूजन कम टू द null hypothesis, how closer our sample is to the null hypothesis। And how we can know this? We know this by the help of well-known distribution curves, what I have just discussed. It can be normal curve, normality curve, it can be t-distribution or chi-square distribution. We will discuss in detail all these tests in upcoming video lectures. So please update yourself and go with that lectures। तो चलिए, तो आई सपोज कि आपको क्लियर है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि कितना हमारा सैंपल क्लोजर है नल हाइपोथेसिस की तरफ, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हाट वी एज्यूम इट इज़ क्लोजर टू द नल हाइपोथेसिस। और ये हम कैसे जानेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अभी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में भी, और या कोई भी रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों या आपके अपने कोर्स के एग्जामिनेशंस हों, तो उनमें पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इनका प्रैक्टिकल डिस्कशन हम अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। तो आप अपडेट रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू विल बी अपडेटेड जब हम उन वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। इट इज़ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर दैट एज्यूम्स दैट अ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आर मेजर्ड ऑन एटलीस्ट इंटरवल स्केल। तो जब हमने अपना क्वेश्चन जो डेवलप किया है, जब उसमें मेजर जो क्वेश्चन हमने डेवलप किया अगर वो लिकर्ट स्केल पर है या कोई इंटरवल स्केल पे है, देन वी गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट। तो एक तो लिकर्ट स्केल पर, दूसरा एक इशू और यहाँ हम देखते हैं द डेटा शुड बी नॉर्मल, कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाउ वी लुक फॉर द टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन लेक्चर्स। देन
तो ध्यान क्या रखना है, पैरामीट्रिक टेस्ट में दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो हमने मेजरमेंट किया वो शुड बी ऑन इंटरवल स्केल, और हमारा जो डेटा है वो हमारा नॉर्मल होना ज़रूरी है। दूसरे टाइप ऑफ टेस्ट, सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट जो दूसरे टेस्ट की बात करेंगे वो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर एज्यूम दैट द वेरिएबल्स आर मेजर ऑन अ नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। तो नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल्स तो आपको क्लियर होंगी और इनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे आगे अपकमिंग वीडियो में, एक बार और डाल दूंगा मेजरमेंट डेवलपमेंट पे, मेजरिंग स्किल डेवलपमेंट पे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जानना है कि अगर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे आपने डेटा मेजर किया है तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वहाँ पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। और साथ ही साथ अगर डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है तो उस केस में भी, अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो उस केस में भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के टाइप्स देख लेते हैं। तो एक बार जस्ट एक ओवरव्यू है, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग लेक्चर्स। तो देख लेते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो इनमें आपका 1 सैंपल एंड 2 सैंपल टेस्ट कैन बी देयर। 1 सैंपल्स मीन्स जहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो एक 1 सेट ऑफ सैंपल इज़ देयर। सो इन दैट केस वी आर हैविंग टी टेस्ट और जेड टेस्ट। तो जब हमें एक ही सैंपल में जब मेजर करना है, एक ही सैंपल हमें लेना है, तो वहाँ पे हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट लेते हैं। और जहाँ पर 2 सेट ऑफ सैंपल्स आर देयर देन वी गो फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर्ड सैंपल। इंडिपेंडेंट में जहाँ पे हम दोनों सैंपल्स का कोई लेना देना नहीं, मान लीजिए क्लास ए और क्लास बी, उनका हम IQ लेवल देखना चाहते हैं कि वेदर देयर इज अ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द IQ लेवल ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी, राइट, और सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन दैट केस वी गो फॉर द इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट वेयर वी आर हैविंग ऑप्शन 2 ग्रुप टी टेस्ट और जेड टेस्ट। अनदर इज पेयर्ड सैंपल टेस्ट, जहाँ पे हम पेयर टी टेस्ट यूज़ करते हैं। पेयर्ड सैंपल कहाँ पे यूज़ करते हैं? पेयर्ड सैंपल बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जब हमारा सैंपल सेम रहता है बट उसको हम कोई फिनोमिना अप्लाई करके, फिनोमिना बिफोर फिनोमिना एंड आफ्टर फिनोमिना हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमिना ऑन दैट पर्टिकुलर सैंपल, देन दैट केस वी गो फॉर पेयर टी टेस्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई क्लास है, कोई सेक्शन है जिसमें हमने नए बच्चे हैं, न्यूली एडमिटेड बच्चे हैं, हमने उनका पहले IQ लेवल मेजर किया, उसके बाद उनको एक कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल या कोई भी सिलेबस हमने रन कराया, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस और कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स वी अगेन मेजर द IQ लेवल ऑफ द सेम सेक्शन। सैंपल हमारे वही हैं बिफोर द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स, बिफोर द ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड आफ्टर द ट्रेनिंग मॉड्यूल, उनका IQ लेवल में क्या डिफरेंस आया कि नहीं आया। अगर आया तो इट मीन्स द IQ में अगर डिफरेंस आया तो इट मीन्स द ट्रेनिंग मॉड्यूल है या जो आपका कोर्स है इट इज़ इफेक्टिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरामीट्रिक टेस्ट। अब अगर वहाँ डेटा नॉर्मल नहीं है, हमने कैटेगोरिकल स्केल पे लिए हुआ है डेटा, तो इन दैट केस वी गो फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो जहाँ पे 1 सैंपल टेस्ट में हमारे पास chi-square KS टेस्ट एंड binomial tests are there. So KS means Kagno-Similar test. We will discuss in upcoming lecture with examples. And another is 2 sample test, non-parametric 2 sample test, जहाँ पे independent sample में हम chi-square, मैन विटनी हम यूज़ करते हैं। मैन विटनी बेसिकली जो टी टेस्ट हमारा पैरामेट्रिक होता है उसी का सब्सिट्यूट होता है मैन विटनी टेस्ट हमारा, ठीक है। देन मीडियन भी हम टेस्ट करते हैं और केस टेस्ट यहाँ भी होता है। देन पेयर्ड सैंपल्स में साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन, मैकनेबर और chi-square टेस्ट भी यूज़। तो बेसिकली जब यहाँ पे पेयर टी टेस्ट होता है उनकी जगह हम इनमें से कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली वी यूज़ विल्कॉक्सन टेस्ट in our research as a substitute to the pair T test. So this is all about hypothesis testing. I hope that you enjoy this lecture. If there is any doubt, you can comment me and I will try to reply you. So stay safe, stay at home and keep learning. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you, students.